Good evening, everyone, and welcome to the seventh edition of our webinar on Investor Profit Series. In our previous webinar, Options webinar, Hansraj and Akash have spoken broadly about options trading, the basics of derivatives and options, a few strategies, and how an investor like you could gain the maximum. In today's derivative webinar, we are discussing what is open interest in futures and how to interpret open interest in options. These derivative tools are designed especially for hedging, but they're increasingly being used by more and more traders as instruments for generating profit. We will also be covering some of the basic questions, such as how to relate price and option and open interest in position trade, what is the ideal situation to take trade. After the presentation, we have an interactive Q&A session where our research desk will answer all your derivatives and options related queries. Before I formally introduce the technical research team leads, I would like to mention a bit about our company, BP Wealth. We are a 70-year-old organization focusing on creating wealth for investors through advisory research, PMS, and stockbroking services. Even in times like these, our excellent research desk has generated decent returns for our investors. On the webinar today, we have Hansraj Modi, Head of Technical and Derivatives at BP Wealth. He holds a CMD certification and his master's in finance with over 14 years of experience in the field of technical and derivatives. He has been a part of BP Wealth family since the past 8 years. Akash Chauhan, derivative analyst at BP Wealth. Akash has done his MBA in finance and NMIS and has over 5 years of experience in derivatives. I would request Hansraj to comment this webinar, please. Hansraj, over to you. Thank you, Anush. We'll start with the webinar. Hello and welcome all of you. I hope everyone is safe and well. Talking about this series, so again, I'll try to give a brief intro about this series. So this investor profit series which we have started, in which we are going to cover a lot of analytical methods. So it is not going to be only options, technicals, or fundamentals, and some more methods are also going to be covered in this series. Talking about this particular series, last time we have started with discussing about options. So in the last webinar, we discussed about what are the basics of options, and what is the option, call option, put option, some of the strategies, and how to use these strategies. So those who are attending this series for the first time, and want to know the basics about whatever we have discussed in this series, can definitely go on to our YouTube channel. There you will find the details of the basics of this options which we have covered in the last webinar. So they themselves can get updated with that. Also, in the of all the previous webinars, it is already there on our YouTube channel. So you can go through the previous webinars which is being conducted. So the method which we have covered till now is technical analysis, options, and fundamental analysis. So talking about the flow of the series which is going now, earlier we have started with giving only the basics of any analytical method. Now slowly we'll be moving towards doing actual analysis and discussing some of the tools which we are using and which we found have good reliability, so that people can use by themselves, and they themselves can generate the view, as well as get help of these tools in their trading. Talking about open interest. So today's topic is open interest analysis. What is open interest? So in general and basic terms, open interest is just the measure of money flow in futures and options market. So if I have to relate it with cash market, जैसे हम कैश मार्केट में देखते हैं कि किसी भी स्टॉक के अंदर कितना वॉल्यूम हुआ है, कितना वॉल्यूम एक्टिविटी है, कितना डिलीवरेबल क्वांटिटी है, तो उससे एक हमें जनरल स्टॉक की स्ट्रेंथ का पता चलता है, लिक्विडिटी का पता चलता है, एंड ऑल्सो वी कैन गेट कंफर्मेशन कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस मूव आया है इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, इज इट अ जेन्युइन ब्रेकआउट और अ जेन्युइन प्राइस मूव, और इट इज जस्ट अ माइनर whipsaw which we have seen. So likewise, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की बात करते हैं, so open interest comes into play while looking on to the activity of any future or option contract. So we look on to open interest. Open interest also, open interest analysis is nothing else
but you are just analyzing the money flows which are there in F&O in a particular stock or index, and how's the ongoing money flow can impact the stock or index price. So in nutshell, it is going to again throw light on what is the position of a stock and analyzing the position of demand and supply of a stock based on open interest. So I guess we can start with the presentation flow. I request Akash to continue with the presentation. Hello. I hope I'm audible, sir. Yes, yeah, Akash, you are audible. Okay, so good evening everyone. This is Akash Chauhan. So आज का हमारा टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट. तो आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, फिर देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू रिलेट प्राइस इन ओपन इंटरेस्ट, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे कि जिसके अंदर प्राइस ने भी मूव दिया है, साथ साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसके एग्जांपल्स भी हम लोग आगे जाके देखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेस टॉपिक ओपन इंटरेस्ट. सो ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग ये है कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सिंपल टर्म, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें ट्रेडर्स की एग्जिस्टिंग पोजीशन अभी भी ओपन है. एंड ओपन इंटरेस्ट सिर्फ एफओ में होता है और कैश मार्केट में इसका इस्तेमाल नहीं होता. सो जनरली इट इज एसोसिएटेड विथ एफ&ओ मार्केट, कि एफ&ओ में अभी अगर आप देखोगे तो हार्डली 140-145 स्क्रिप्ट एनएससी में ट्रेडेड होती है. तो उसके अंदर ही सिर्फ हमको ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करना होता है. ओपन इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअस डेटा. तो ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअस डेटा कैसे होता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक वॉल्यूम होता है कि फॉर एग्जांपल आज के दिन में एसबीआई में 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हुआ. तो ओपन इंटरेस्ट तो फिर नेक्स्ट दिन जब ट्रेड होगा एसबीआई, फॉर एग्जांपल अभी कल ट्रेड होगा एसबीआई, तो एसबीआई में वॉल्यूम स्टार्ट होगा 0 से, राइट. तो ओपन इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता. ओपन इंटरेस्ट में होता है कि फॉर एग्जांपल आज 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग पोजीशन ओपन है, तो नेक्स्ट डी मतलब कल अगर ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तो वो 1 करोड़ से स्टार्ट होगा, नहीं ना कि 0 से. तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ओआई एंड वॉल्यूम. ओपन इंटरेस्ट इज जीरो सम गेम. तो जीरो सम गेम कैसे होता है कि यहाँ पे हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, तो मतलब बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल. फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की हमको दिख रहा है कि ये पोजीशन इस स्टॉक के अंदर 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, तो 1 करोड़ बायर्स है, उसके सामने 1 करोड़ सेलर्स है. मींस कि अगर बायर्स को प्रॉफिट होगा तो सेलर को लॉस होगा, और अगर सेलर्स को लॉस हो रहा है तो बायर्स को प्रॉफिट होगा. सो दिस इज अ जीरो सम गेम. सो ओपन इंटरेस्ट टेल्स अस हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइव and open in the market, and OI increases when new contracts are added and OI decreases when existing positions are square off. तो ये थोड़ा थियोरिटिकल हो गया. तो नाउ लेट्स सी कि उसका एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है. सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है फ्यूचर्स का. तो फ्यूचर्स में क्या होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, राइट. फिर OI इंक्रीज कब होता है अभी वो देखते हैं कि बायर ने एक अपनी पोजीशन, फॉर एग्जांपल बायर मैं हूं और आप सेलर हो, तो मैं अपने ब्रोकर के पास जाके बोलता हूँ कि मुझे निफ्टी में एक लॉट बाय करना है कि मुझे यहाँ से तेजी लग रही है. और आपने क्या किया, आप अपने ब्रोकर के पास गए और बोले कि मुझे निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक बाय किया और आपने एक सेल किया. तो यहाँ पे हुआ कि दोनों का मिला के एक ओपन इंटरेस्ट, हमारी पोजीशन इंक्रीज होती है. ओके, अभी हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कैसे होता है. Sorry to interrupt you. If you can go a little bit slow and once again start with what is open interest, because I guess a lot of new people are there who are new to F&O market. So I guess it would be better for them if you can understand, make them understand once again what is open interest and go a little bit slow. ओके, नो इश्यू सर. सो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है. तो ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग ये है कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मींस कि आज के दिन में मार्केट में कितनी आउटस्टैंडिंग पोजीशन एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ओपन है. सो ओपन इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअस डेटा, अनलाइक वॉल्यूम. कि वॉल्यूम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज एसबीआई का शेयर है, राइट. तो एसबीआई के शेयर में 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो 1 करोड़ का वॉल्यूम अगर हम देखोगे तो आज का है, फिर कल जब ट्रेड होगा एसबीआई, राइट, तो वो 0 से स्टार्ट होगा, कि 0 से वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा. बट ओपन इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता. ओपन इंटरेस्ट में कैसा होता है कि आज हमको पता है कि आउटस्टैंडिंग पोजीशन
ओपन इंटरेस्ट एसबीआई के अंदर 1 करोड़ शेयर्स का है, तो कल जब एसबीआई वापस से स्टार्ट होगा ट्रेडिंग, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 1 करोड़ से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों के बीच में बिगेस्ट डिफरेंस है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है कि ओपन इंटरेस्ट इज जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि 1 करोड़ बायर्स हैं और 1 करोड़ सेलर्स हैं। सो अगर बायर्स को प्रॉफिट होगा तो सेलर्स को लॉस होगा, और सेलर्स को लॉस होगा तो बायर्स को प्रॉफिट होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ जीरो सम गेम। सो ओपन इंटरेस्ट टेल्स अस हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन एंड लाइव इन द मार्केट। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आए, हमको आके दिखाता है कि ओपन इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 करोड़ है, तो मींस 20 करोड़ बायर्स और 20 करोड़ सेलर्स की अभी भी पोजीशन इसके अंदर ओपन है। नाउ नेक्स्ट कम टू OI increases when new contracts are added and OI decreases when existing contracts are square off. Okay? तो ये हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, कैसे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है और कैसे ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है। Just a moment. Just a moment. So, as Akash has already explained about open interest, now what is the importance of open interest? Generally, हम देखते हैं कि we always talk about कि where is the smart money going and where is the money actually flowing in a particular stock. कई बार हम देखते हैं कुछ स्टॉक के लोग बहुत sluggish रहते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं आता, वोलेटिलिटी नहीं आती है. At the same time, कई स्टॉक के अंदर माइनर मूव्स आ जाते हैं, सस्टेनेबल मूव्स नहीं आते हैं. So that depends a lot upon the positioning of a particular stock or index. उसकी एक्टिविटी जो अपन बोलते हैं एफ एंड मार्केट के अंदर एक्टिविटी को मेजर किया जाता है. सो दैट इज डन थ्रू ओपन इंटरेस्ट. नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल, we will take you through examples in in the coming slides, and you will yourself see कि एक्टिविटी इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से उसका प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, and how we can use this positioning of open interest to our advantage. So we are going to take you through the slides and make you understand. ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल आपको एक्टिविटी बताता है कैसा उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर ओवरऑल मनी फ्लो कैसा है, whether it is the recent activity has seen any rise in open interest. वो सजेस्ट करता है कि ओवरऑल एक्टिविटी उस स्टॉक के अंदर बढ़ गया है, दैट मींस इंटरेस्ट बढ़ा है. एट द सेम टाइम व्हेन इट इज डिक्रीजिंग इट सजेस्ट कि वहाँ पे ओवरऑल इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है. So now Akash, you can proceed. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है कि जब फ्यूचर्स में हम लोग बाई करते हैं कोई भी स्टॉक, तो वहाँ पे एक बायर होता है और एक वहाँ पे सेलर होता है, राइट. फिर हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कैसे होता है. तो यहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है. बायर अपने फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ और आप सेलर है, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं अपने ब्रोकर के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे निफ्टी के अंदर एक पोजीशन क्रिएट करनी है और मुझे कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है. ऐसे ही आप अपने ब्रोकर के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने बाय किया और आपने सेल किया, तो दोनों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज. मतलब दोनों को मिला के एक नया पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ. तो ऐसे हमारा एक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज एक से हमारा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है. फिर अब हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कैसे होता है. तो सेम एग्जांपल कि मैं बायर हूँ और आप सेलर हैं, राइट. और मैंने बाय किया था, आपने सेल, राइट. तो मैंने क्या अभी क्या हो नीचे आ गया है यहाँ से, तो मुझे लॉस हो रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है. तो मुझे अभी मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा जो लॉस है वो मुझे बुक करना है और आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है. तो मैं क्या करूंगा, मेरी पोजीशन एग्जिट करूंगा, आप भी अपनी पोजीशन एग्जिट करोगे. तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो था 1 वो होके वापस हो जाएगा 0. तो आपने अपनी पोजीशन बाय कर ली, मैंने अपनी पोजीशन ली. तो ऐसे हमारा ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट एग्जांपल इज ओपन इंटरेस्ट अनचेंज. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑलरेडी पोजीशन जो है ए और बी की, ऑलरेडी उनकी पोजीशन एग्जिस्टिंग थी. मतलब उन लोग एक बायर जो था वो बाई कर रहा था, बाई पोजीशन को होल्ड कर रहा था, और सेलर था जो था वो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कर रहा था. तो बायर ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली और सेलर ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली. उसके सामने सी जो है वो मार्केट में आया और उसने एक पोजीशन बाई किया और डी ने वापस आके एक पोजीशन सेल किया. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 0 हो गया, मतलब -1 हो गया, और उसके सामने सी और डी का पोजीशन एक बढ़ गया, मतलब प्लस हो गया. तो +1 - 1 = 0. मीन्स कि हमारा OI जो है वो यहाँ पे अनचेंज हो जाएगा.
ओके। सो अब आ जाता है कि ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन पे, कि ओपन इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है यहाँ पे। वापस प्रीवियस स्लाइड पे आना। So, as Akash has explained you regarding addition of open interest, then decrease in open interest and unchanged open interest. So, in general जब हम मार्केट को किसी भी स्टॉक की ओपन इंटरेस्ट को ओवरऑल चेक करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये सब कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हाउ द मैकेनिज्म वर्क। क्योंकि जनरली लोग कैसे समझते हैं कि कभी भी जो ओवरऑल एक्टिविटी होता है वो बायर और सेलर को क्लब करके लिया जाता है कि एक तरीके से कितनी क्वांटिटी के बायर हुए, कितने सेलर्स हुए, दोनों को मर्ज कर दिया एंड देन यू अंडरस्टैंड कि टोटल एक्टिविटी कितना हुआ है। सो दैट इज नॉट द केस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल। आई मीन या तो आप सिर्फ बायर का वैल्यू ले लीजिए या सेलर का ले लीजिए, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये जो हमने कैलकुलेशन बताया थ्योरेटिकल, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस इन जनरल, बट ओपन इंटरेस्ट का जो कैसे कैलकुलेशन होता है, दिस वाज एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे अंडर द हुड उसका मैकेनिज्म वर्क करता है। जब हम एक्चुअल एनालिसिस करने जाते हैं, so we are not going to do any calculation as such, we are only going to look on to actual figures कि ओपन इंटरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या इंडेक्स में बढ़ा है, कम हुआ है, किस एक्सटेंट से बढ़ा है या किस एक्सटेंट से डाउन हुआ है। So that is how we are going to use it. Yes, Akash, you can continue. सो अभी तक तो हमने देखा कि सिर्फ ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग को एक और फैक्टर चाहिए रहेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइस। तो प्राइस और ओआई के को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप किसको बोलते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है कि हमारा प्राइस ऊपर जाता है और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि स्टॉक यहाँ से बुलिश होगा। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होता है। सो ये हमारा एक प्रोडक्ट है टेक्निकल ट्रेंड करके, जो हम लोग बीपी वेल्थ के जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको मॉर्निंग में हम लोग व्हाट्सएप पे भी जाता है और ईमेल पे भी जाता है। तो उसमें से मैंने ये एक पार्ट जो है यहाँ पे कॉपी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप 10 ओपन इंटरेस्ट गेनर। तो यहाँ पे देखोगे कि हमने क्या किया है कि 5th और 8th के बीच में जो भी प्राइस ऊपर गया है उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमने उसको ले लिया है। तो आप जैसे देख सकते हो कि जस्ट डायल का प्राइस, शेयर प्राइस 6.57% अप गया था, उसके सामने उसका ओपन इंटरेस्ट 22% ऊपर गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट डायल के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है। ऐसे ही आप चोला फाइनेंस और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी देख सकते हो कि 0.93% अप था और उसके सामने उसका ओपन इंटरेस्ट अप था 21%। तो ऐसे को बोलते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप मींस कि आपका प्राइस भी ऊपर गया है, साथ साथ में आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। So like just in if you want to compare for beginners, if you generally see cash market में हम जो generally देखेंगे प्राइस ऊपर गया साथ में वॉल्यूम ऊपर गया। If price has increased and volume has also accompanied the price and it has increased, that suggests a bullish momentum कि उस प्राइस को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। So likewise प्राइस के साथ ओपन इंटरेस्ट को हम कंपेयर करते हैं in case of F&O market. So that is how long build-up is done. नाउ नेक्स्ट पे आ जाता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है कि आपका प्राइस भी नीचे जाता है, साथ साथ में आपका ओपन इंटरेस्ट भी डाउन जाता है। तो इसको क्या होता है कि बियरिश मूव है। फॉर एग्जांपल आपने अभी यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन क्रिएट कर ली, ओके, और स्टॉक ऊपर गया, फिर आप क्या करोगे, प्रॉफिट तो बुक करोगे, राइट। तो प्रॉफिट बुक करोगे तो प्राइस तो थोड़ा नीचे आएगा। उसके साथ साथ आप क्या करोगे कि आपकी जो ओपन इंटरेस्ट जो आपने उसमें किया था कि एक आपने शेयर लिया था उसको आप बेचोगे, तो क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होगा कि आपका एक ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, साथ साथ में आपका प्राइस भी थोड़ा नीचे आएगा। तो ये माइल्डली बियरिश होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बाटा इंडिया। तो यहाँ पे आप बाटा इंडिया को देख सकते हो कि हमारा 0.82% परसेंटेज चेंज माइनस में हुआ है, साथ साथ में हमारा 11.65% जो इसमें ओपन इंटरेस्ट था 5 तारीख को, 8 तारीख को हमारा 11% से माइनस हुआ है। मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे हमारा ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है। मींस कि लोगों की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट बिल्डअप पर, कि शॉर्ट बिल्डअप किसको बोलते हैं। शॉर्ट बिल्डअप इसको बोलते हैं कि जहाँ पे हमारा प्राइस नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करते जा रहे हैं। मींस कि ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे ऊपर जा रहा है,
तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आप लास्ट 3 को यहाँ पे देख सकते हो, आईजीएल, मदरसन सुमी और पीवीआर को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस 3.33% डाउन था, यहाँ पे मदरसन सुमी का 4.60% प्राइस डाउन था और पीवीआर का 4.25% ओपन प्राइस डाउन था। बट उसके सामने आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट, तो नई पोजीशन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। मींस को जो 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट था वो बढ़ के अभी 74 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मींस कि हमारा 12.42% इसके अंदर न्यू पोजीशन क्रिएट हुए हैं। तो ये यहाँ पे हमको पता चलता है यहाँ से कि आईजीएल, मदरसन सुमी और पीवीआर के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है कि शॉर्ट कवरिंग पे। शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं कि हमारा हम लोग अभी हमने शॉर्ट तो कर दिया, राइट, ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट बिल्डअप तो हमने कर लिया, फिर स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो क्या होगा कि हम लोग हमारे प्रॉफिट तो बुक्स करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है तो आप अपनी पोजीशन जो शॉर्ट बिल्डअप किया हुआ है आपने, वो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट को आपको कवर कर रहे हो। मीन्स की आपका जो ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट था वो अभी यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ओपन पोजीशन थी वो अभी आप यहाँ पे क्लोज कर रहे हो। तो इसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एनसीसी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा प्राइस अप हुआ है, बट यहाँ पे ओआई चेंज देखोगे तो 27 और 12% यहाँ पे माइनस हुआ है। मीन्स की जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन थी वो यहाँ पे लोगों ने कवर किया है अपना। तो दीज आर द 4 मेन कॉन्सेप्ट इन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस फॉर स्टॉक्स की लॉन्ग बिल्डअप, जहाँ पे हमारा प्राइस भी अब ऊपर जाता है, साथ साथ जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है ऐसे ऐसे हमारी पोजीशन भी बिल्डअप होती जाती है। सेकंड इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है कि आपकी ऑलरेडी लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन है जिसको आप कवर कर रहे हो प्रॉफिट में। थर्ड होता है शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता है ऐसे ऐसे आपका ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन बढ़ता जाता है। मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन और क्रिएट कर रहे हैं। और शॉर्ट कवरिंग ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है वो कवर करते जाते हैं। तो दीज आर द 4 मेन टॉपिक जिसपे हम पूरा प्रेजेंटेशन आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है हमारी वेबसाइट पे जाओगे रिसर्च सेक्शन में टेक्निकल ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे आपको एवरीडे हम लोग मॉर्निंग को 8 o'clock 8:30 हम लोग ये फाइल जो है वो अपलोड करते हो, तो वहां से आप अपना स्टॉक सिलेक्शन फॉर दैट डे आप कर सकते हो। सो ये अगेन नेक्स्ट दिस इज डेरिवेटिव अपडेट की जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है बीपी वेल्थ के, उनको एवरी मॉर्निंग ये हमारा एक इमेज जाता है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रीवियस डे के अंदर कौन से स्टॉक के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, कौन से स्टॉक के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, कौन से स्टॉक के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ और कौन से स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुआ। तो ये हम एक जो इमेज है वो हम हमारे क्लाइंट को भेजते हैं और साथ साथ में हम लोग टेलीग्राम के पे भी अपलोड करते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो भी हम लोग ने अभी तक ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन देखा, तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है। फर्स्ट कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनगोइंग ट्रेंड, कि हम लोग को एक हेल्प करता है कि ऑनगोइंग ट्रेंड जो है कि कल पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है, तो आगे जाके भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि ये फर्दर जो ट्रेंड है उसका वो कंटिन्यू करेगा। सेकंड स्पॉट चेंज इन ट्रेंड की शिफ्ट होता है, शिफ्ट जो होता है तो वहां पे हम लोग एक पता चलता है कि ये शॉर्ट बिल्डअप था, फिर वहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, फिर अभी धीरे धीरे करके उसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो जो एक शिफ्ट होता है चेंज ट्रेंड में, वो फिर यहाँ से हम लोग को पता चलता है। सेकंड, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर ट्रेडिंग, कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सडन पॉइंट पर आके ओपन इंटरेस्ट सडनली इंक्रीज हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अभी 22% ये हो गया, इंक्रीज हो गया ओपन इंटरेस्ट, तो वो उसके जो लेवल्स होते हैं, उसके जो हाई और लो होते हैं, वो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और चेक मनी फ्लो इनटू द स्टॉक, तो कभी कभी भी आप देखोगे कि जब जब भी लार्ज मूव आना होता है उसके पहले ही सडन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने लगता है, मीन्स कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर कर रही है। तो ये 4 चीजें आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से पता चलती हैं। Now I further hand over to our technical research head Hansraj Modi. So further he will continue from there. Yeah. Thank you, Akash. Akash, if you can go to the previous slides, वो जो टेक्निकल ट्रेंड के बाद वाला जो था जहाँ पे हम टेक्निकल ट्रेंड वाला, हाँ ये वाला. So as Akash has explained you this concept of long built up
शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, एंड इन्फ्रेंस जो होता है, दिस इज ये जो रिपोर्ट आपको डेली मिलता है, इन दैट वी आर ट्राइंग टू this particular report has mainly significance for intraday players because कल की एक्टिविटी के बेसिस पे they can plan their trades in advance कि किन किन स्टॉक्स में ऐसा पोजिशनिंग हुआ है। मोस्टली ओपन ये जो प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का कोरिलेशन हमने देखा, दैट जनरली हम डेली बेसिस पे उसे नोट करते हैं, सिंस पीपल आर मोर एक्टिव इन F&O फ्रॉम शॉर्टर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लेस देन 1 वीक का, लेस देन 2-3 डेज के अंदर ज्यादा एक्टिव होते हैं। इंट्राडे पीपल आर वेरी मच एक्टिव इन केस ऑफ F&O, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए दिस इज द डेटा विच यू कैन see on a regular basis. if you see our website, वहाँ पे हमारा 2 रिपोर्ट बनता है, उनके अंदर से आप ये डेटा रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। Now coming on to the open interest analysis part, which Akash has suggested. Akash, if you can come on to that slide. हाँ, so हमने जब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की बात करी, जैसे आप देखिए कि किसी भी स्टॉक का इंडिविजुअल जो पोजिशनिंग होता है, हमने टेक्निकल में भी डिस्कस करा था। लाइकवाइज हम कोई भी मेथड हम लगाते हैं, वेदर इट इज डेरिवेटिव, टेक्निकल, वी आर जस्ट ट्राइंग टू असेस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ स्टॉक। और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि कभी भी कोई पर्टिकुलर प्राइस मूव आता है, अप ट्रेंड आता है, साथ में उसके वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो वी कंसिडर दैट कि ये स्ट्रॉन्ग मूव है और इसमें और फर्दर स्ट्रेंथ है, प्राइस स्टेबल लग रहा है, एंड वी कैन कंटिन्यू दैट टू वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। तो वैसे ही मैंने एक निफ्टी का एग्जांपल लिया है। जैसे ओपन इंटरेस्ट के काफी सारे यूजेस है, उसमें से सबसे पहला कि आप जो ऑनगोइंग ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑनगोइंग ट्रेंड क्या चल रहा है। उसका सबसे पहला एग्जांपल ये है कि यदि वॉल्यूम को, प्राइस मूव को ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट करता है, तो उसी डायरेक्शन में हम फर्दर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग विद फर्स्ट दिस लाइन विच आई हैव ड्रॉन, यहाँ पे देखिए कि जैसे ही डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ एरो, आकाश वहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल के ऊपर इफ यू कैन पॉइंट ऑन एरो, हाँ यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस डिक्लाइन हुआ है, दैट मीन्स इट इज सजेस्टिंग कि जो अंडरलाइन ट्रेंड है दैट इज डाउन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन कि वो वहाँ से प्राइस फर्दर डाउन साइड कंटिन्यू करता है। सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं, ये निफ्टी का चार्ट लिया मैंने डेली टाइम फ्रेम का। अपर विंडो में आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है एंड लोअर विंडो में ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन जो एक्सपायरी के टाइम पे स्पाइक्स देखते हैं हम, रोल ओवर देखते हैं हम कि इस एक्सपायरी से नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर फ्यूचर्स का रोल ओवर होता है, तो दोज ऑल आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन दिस चार्ट। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन OI क्यूमुलेटिव, ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव लिया है हमने लोअर विंडो में, जो आपकी बार चार्ट जैसा आपको जो दिख रहा होगा, ग्राफ जो दिख रहा है लोअर विंडो में, और अपर साइड पे हमने प्राइस प्लॉट करा है। सो सेकंड एग्जांपल में आता हूं मैं, जहां पे आप देखिए कि ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग एंड विद दैट प्राइस राइज कर रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो दैट इज सजेस्टिंग कि जो ओवरऑल ट्रेंड है अप है, एंड टू कंटिन्यू विद दैट वी हैव सीन प्राइसेस गोइंग फर्दर। So this is how आप with the help of open interest you can actually identify कि overall trend क्या चल रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी ट्रेडर के दिमाग में यही होता है सबसे पहला कि सबसे पहला ट्रेंड क्या चल रहा है, that I want to know। So this is one thing जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। Talking about recent example, I mean coming on to third example, निफ्टी का जो है, यहाँ पे भी आप देखिए कि ओवरऑल प्राइस बढ़ा, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है। So it suggests कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आगे चलेगा। अभी हम यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड की जो Hansraj, sorry to interrupt you. Yeah. Anil sir is saying, can you please explain the first example again? Right. So in the first example, as I've seen कि यहाँ से प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एंड साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। So that is suggesting कि the activity is increasing with the decline, प्राइस डिक्लाइन के साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो सजेस्ट करता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है दैट इज डाउन। सो दिस वाज द इन्फ्रेंस। जब भी प्राइस का कोई डायरेक्शन आता है और उसको ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट करता है उसी डायरेक्शन में, तो दैट सजेस्ट कि ओवरऑल ट्रेंड उसी डायरेक्शन में है। तो एज इन दिस केस फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस नीचे जा रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो द ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव। अब
यहाँ पे जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो दे आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रेंड। कई लोगों के लिए देयर फोकस इज ओनली फॉर फ्यू डेज, लेस देन 1 वीक का होता है, 2 वीक्स का होता है, 1 मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है। तो यू नो so first of all you need to define yourself कि आप कितने टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख रहे हैं। जनरली ये जो मैं यहाँ पे एग्जांपल देख रहा हूँ ये 1 to 2 वीक्स के डेली चार्ट पे भी मैं देख करके व्यू निकाल रहा हूँ, दैट इज ओनली लास्टिंग फॉर 1 to 2 डेज। और जब मैं बहुत ज्यादा दिन का डेटा कवर करता हूँ, से आई एम कंसीडरिंग डेटा फॉर मोर देन 1 week 2 weeks, देन आई एम लुकिंग फॉर मोर ऑफ पोजिशनल ट्रेड। तो पोजिशनल ट्रेड का डेफिनेशन होता है विच कैन लास्ट 1 week से लेके 4 weeks तक या 6 weeks तक, जनरली दैट इज द ड्यूरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले खुद को वो डिफाइन करना जरूरी है। मैंने यहाँ पे 16 डेली चार्ट लेकर के करा है। यू कैन गो ऑन टू हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, एज पर योर रिस्क एपेटाइट एंड योर रिक्वायरमेंट। I hope I am clear with the example which I have shown. Yes, so it is taken for all series, cumulative लिया जाता है। Coming on to fourth example, जो हमने recent crack देखा मार्केट के अंदर, यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस निफ्टी का डाउन मूव देखा एंड इट वाज सपोर्टेड बाय राइज इन ओपन इंटरेस्ट। तो इस प्राइस मूव को जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, that was supported by open interest, so it was suggesting the trend is going down. Another thing to note here is कई बार क्या होता है कि because of whipsaw कई बार एक दिन के राइज हो जाते हैं, मे बी ड्यू टू एक्सपायरी। एक तो हमने काफी बार स्पाइक्स देखे हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए मैंने इस एग्जांपल के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो प्लॉट करा है लोअर विंडो में, आई हैव टेकन 50 days एवरेज ऑफ दैट क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो वहां पे मैं देख सकता हूँ ऑन एन एवरेज ओपन इंटरेस्ट कहाँ चल रहा है। तो एज आई वाज सेइंग कि किसी भी एक दिन के मूव को मेरे को इग्नोर भी करना है या कभी स्पाइक भी आ गया है, तो उसको फिल्टर करने के लिए मैं यहाँ पे एवरेज यूज कर लूंगा। तो आई हैव टेकन 50 day एवरेज। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से जैसे ही इसके पहले जो फोर्थ एग्जाम्पल है, इसके काफी टाइम से ओपन इंटरेस्ट जो था उसके नीचे चल रहा था एंड सडनली देयर वाज राइज इन दैट एक्टिविटी। और जब ये मैंने जो फिफ्थ एग्जांपल लिया है, फिफ्थ इसमें जो लिया ओपन इंटरेस्ट गेन का, वहां पे मैंने कंसिडरेबल राइज देखा ओपन इंटरेस्ट के अंदर एंड विद अ शार्प फॉल इन प्राइस। सो देयर आर टू थिंग्स की इफ आई एम फ्यूचर ट्रेडर या मैं ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड डिफाइन कर रहा हूँ, तो एक बात तो मुझे काफी कंफर्म दिख रही है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे एक्टिविटी ओपन इंटरेस्ट के अंदर बढ़ रहा है। दैट मींस इट इज गिविंग मी इनफ सिग्नल दैट द ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन। लाइकवाइज अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, आई कम ऑन टू सेवेंथ एग्जांपल। आप देखिए कि जो निफ्टी ने एक शार्प राइज लिया था, 9900 का लेवल टेस्ट करा था, उसके बाद एक बार शार्प डिक्लाइन आया था, दैट वाज क्लोज टू दैट 8800 लेवल। वहां पे आप देखिए जो 9900 से 8800 का लेवल था, ड्यूरिंग दिस डिक्लाइन द OI हैज रिड्यूस। जो ओवरऑल फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट था वो काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ था। So that was suggesting कि इस price decline को open interest suggest support नहीं करता है। That's why we have seen there was a sharp recovery after that. उसके बाद जो 8th एग्जाम्पल है वहाँ पे आप देखिए कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, साथ में ओपन इंटरेस्ट हैज स्टार्टेड रीगेनिंग अगेन। तो जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट उसको फुल डायरेक्शन में सपोर्ट करता है, दैट सजेस्ट कि ओवरऑल ट्रेंड वहाँ से वापस से पॉजिटिव हो गया है। So this is very classical example जो अभी हमने recent days में देखा, recent history है, everyone can definitely look on to it कि ये जो पूरा decline था 9900 से 8800 तक का, वहाँ पे उसको open interest ने support नहीं करा था। That was suggesting कि ये जो decline है, this is not sustainable। वहाँ पे हम doubtful हो सकते हैं कि overall जो activity है वहाँ पे less हो रही है। I guess we can come on to next example now. So see, this is another chart in front of you, IndusInd Bank का। IndusInd Bank में भी आप देखिए लोअर विंडो में अगेन ओपन इंटरेस्ट है और अपर विंडो में प्राइस है। अब देखिए कि जब तक जो फर्स्ट मैंने एरो मार्क करा है ओपन इंटरेस्ट पे, जब तक वहाँ पे जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट था वो एवरेज के नीचे था और एक स्टेबल चल रहा था। जैसे ही प्राइस डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और ओपन इंटरेस्ट ने वहाँ से उसे सपोर्ट करा, तो देयर आर टू एक्शंस टू इट कि एक तो प्राइस फॉल काफी रैपिड हो गया एंड वी गॉट ए कंफर्मेशन कि यहाँ से जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज गोइंग टू बी डिक्लाइनिंग एंड वी हैव सीन दिस इन कपल ऑफ इंस्टेंसेस।
राइट। नेक्स्ट 2 इंस्टेंसेस के अंदर भी हमने सेम एक्टिविटी देखा कि प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, साथ में सपोर्टेड बाय इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। So that was supportive of the fact कि overall trend is going to remain down. Next example. See another, हाँ जो हमने अभी ओपन इंटरेस्ट के बारे में पहले बात करते हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, देन अनदर पॉइंट विच वी डिस्कस वाज चेंज ऑफ ट्रेंड। चेंज ऑफ ट्रेंड का मतलब ये, जैसे हमने निफ्टी के अंदर भी अभी रिसेंटली एग्जांपल देखा था कि जो डिक्लाइन आया उसको ओपन इंटरेस्ट ने सपोर्ट नहीं करा, तो वहां से ट्रेंड जो था वो चेंज होकर बुलिश हो गया। Likewise, a better and clear example would be ICICI Prudential, which has happened recently. आप देखिए कि यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट एरो मार्क करा है प्राइस के अंदर, इसके अंदर पूरा प्राइस यहाँ से इंक्रीज हुआ, रैली आया। एट द सेम टाइम जस्ट लुक ऑन टू द पोजिशनिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं था, दैट वाज रादर फ्लैटिश। उसके बाद वापस से प्राइस डिक्लाइन होता है, दैट मीन्स दिस मूव वाज नॉट सपोर्टेड बाय ओपन इंटरेस्ट। इसी के साथ में जब नेक्स्ट टाइम मैंने देखा कि प्राइस राइज हुआ, वी हैव सीन सस्टेंशियल राइज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का ओवरऑल एक्टिविटी हैज चेंज। वहां से हमने देखा कि प्राइस जैसे बढ़ा, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा। सो वी हैव सीन कि यहाँ से जो पहले फर्स्ट प्राइस मूव के अंदर जो पार्ट मिसिंग था, जिसकी वजह से प्राइस हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से इट रादर मेड अ न्यू लो। और इस टाइम पे हमने देखा कि प्राइस बढ़ा, साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, सो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ बिगर अप मूव एंड एट द सेम टाइम अ सस्टेनेबल वन। कई बार हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट की एफ&ओ के अंदर वोलेटिलिटी भी कई बार काफी हाई मिलती है हमको। तो दिस इज वन फैक्टर विच यू कैन लुक ऑन टू फॉर आइडेंटिफाइंग चेंज इन ट्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल आकाश। आकाश नेक्स्ट स्क्रीन। आकाश आकाश हेलो। हाँ नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्लाइड। या सो थर्ड हमने एक और चीज डिस्कस करी थी ओपन इंटरेस्ट के बारे में। इन ऑर्डर टू चेक द मनी फ्लो, हम कई बार देखते हैं कि द स्मार्ट ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी इज एक्टिव इन दिस काउंटर, ऐसी चीजें हम काफी बार स्पीच पे सुनते हैं। बट इट इज कोई एक बैरोमीटर मिले, कोई चीजें हम सामने डेटा सामने देख सकें जिसके ऊपर हम रिलाय करके उसे वी कैन टेक इनटू आवर कंसीडर इनटू आवर ट्रेडिंग। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे एशियन पेंट का। एशियन पेंट आप देखिए कि फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2-3 मंथ्स यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाज वेरी फ्लैटिश, एक रेंज से ऊपर नहीं जा रहा था। और यहाँ पे भी हमने जो चेंज इन ट्रेंड की बात करी थी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का जो हम एग्जांपल देख रहे थे, फर्स्ट एरो जो प्राइस का मैंने मार्क करा है, अपर विंडो में प्राइस है, लोअर विंडो के अंदर ओपन इंटरेस्ट है। फर्स्ट एरो जो मार्क करा है यहाँ पे प्राइस राइज आया था, बट रादर ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ था। So that's why that was not a sustainable move, वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और हमने स्टॉक को देखा कि उसने एक नया लो बनाया। उसके बाद हमने एक बार देखा कि आफ्टर द स्टॉक इज मेड अ न्यू लो, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव चेंज। एक तो ओपन इंटरेस्ट का ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ गया, इट स्टार्टेड अगेन ट्रेडिंग अबाउट एवरेज, और जैसे ही प्राइस बढ़ा उस मूव को ओपन इंटरेस्ट ने सपोर्ट करा। सो देयर आर टू थिंग्स, एक तो चेंज इन ट्रेंड हुआ यहाँ पे, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हम जैसे बोल सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया और साथ में ओपन इंटरेस्ट ने उसको सपोर्ट करा। सो न सिर्फ प्राइस बढ़ा, वहां से सस्टेनेबल मूव मिला। एट द सेम टाइम वी केम टू नो कि yes, this is the stock wherein the activity has started, the money flow has started, which has resulted into such kind of move। इतना जो हमने अच्छा मूव देखा कि स्टॉक में इतना शार्प रन आया और सस्टेनेबल रन आया, तो वी नो कि someone has started taking any activity, doing some activity in this stock। so एक कई बार हम स्ट्रीट्स पे सुनते हैं कि इस ex investor has bought this stock or he is actively accumulating this stock or distributing this stock, यहाँ पे वो पोजीशन बना रहे हैं, कर रहे हैं। so but there is no barometer for it। so open interest is one such tool which can actually filter out the stocks and give you which are the stocks in which actively people are looking at, smart money and money flow is there in these stocks। so this is another example जहाँ पे हमने देखा कि change in trend कैसे हुआ और money flow कैसे वहाँ पे हमने increase होते हुए देखा। another example, next slide आकाश।
So I guess we can go on to have one example and we can see जो हमने basic ही stuff देखा open interest related, if we are able to spot it. Akash, you can go on to quiz 1. So this is one stock which is in front of you. यहाँ पे आप देखिए इस जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्कशन करा, हमने स्टॉक्स ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करा और ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को कोरिलेट करके हमने देखा. कैन यू सी ये जो एक्टिविटी रिसेंट हुआ इसके बेसिस पे स्टॉक का आगे क्या मूव हो सकता है. इफ यू पीपल कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे ट्रेंड क्या होने वाला है और डायरेक्शन क्या होने वाला है, और ओपन इंटरेस्ट से को एनालाइज करके व्हाट वी कैन कंक्लूड आफ्टर लुकिंग ऑन टू दिस चार्ट. You can write your answers in the chat box, right? I'm going to give 1 minute for this. You can write your answer in the chat. Right. So I guess the audience is very well versed with this, and they must have understood what we were trying to say. You can come on to the answer, Akash. That slide. Can anyone guess which stock it is? The example which we took is GAIL. So हमने देखा कि स्टॉक का जो ओपन इंटरेस्ट था वो काफी टाइम फ्लैटिश था. जैसे ही डाउन मूव स्टार्ट हुआ, वी हैव सीन मनी फ्लो इंक्रीज इन द स्टॉक, और जो ऑनगोइंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, शार्प एक्शन डाउन साइड पे स्टार्ट हुआ, दैट वाज सपोर्टेड बाय ओपन इंटरेस्ट. तो आप देखिए कि ये चीज स्टार्ट होने के बाद कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा एंड इट कंटिन्यू टू मेक न्यू लोस. सो जस्ट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ पे हमने कोई टेक्निकल टूल की बात नहीं करी है, हमने कोई भी और दूसरी एनालिटिकल मेथड को इंक्लूड नहीं करा है, जो कि हम जनरली करते हैं जब भी हम एक डिसीजन लेते हैं ट्रेड करने का. काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, बट वी जस्ट वांटेड टू टेल यू कि सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को और ओपन इंटरेस्ट को प्राइस के साथ को रिलेट करके हाउ इजीली वी कैन स्पॉट द ट्रेंड, राइट. सो दिस वाज गेल इन फ्रंट ऑफ यू. I guess we can have another example. Akash, इस पे आना और previous slides पे आना जो last हमने discuss करा था उसके बाद. So I'm not going to discuss in detail each and every slide because same repetition होगा, but I'm going to take some interesting examples which were of importance recently as well. Akash, next slide. ACC, या सो एक और हमने यूज डिस्कस करा था ओपन इंटरेस्ट का कि ओपन इंटरेस्ट गिव्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस जिसको विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. एक ये हमने एक्टिविटी वॉल्यूम में और ओपन इंटरेस्ट में देखा है कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट हैज गॉन टू सम सच लेवल, रिसेंट हाई को मतलब द रिसेंट रीडिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट is highest of last maybe say 30 days 60 days. तो उस पर्टिकुलर बार का, जैसे डेली चार्ट पे, तो उस पर्टिकुलर डे का जो हाई और लो बनता है प्राइस का, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मैंने डाउन एरो प्लॉट करे हैं, दीज आर मेजर स्पाइक्स और मेजर हाई मेड बाय ओपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स. और वहाँ के आसपास देखिए कि मोर और लेस इट इज कोइंसाइडिंग विद द इंटरमीडिएट हाई. जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करे हैं, दोज आर कोइंसाइडिंग विद द हाई द स्टॉक हैज मेड. सो एक ये फाइंडिंग हम नोट कर सकते हैं कि जब भी हम ओपन इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं तो वी शुड कंपेयर द करंट रीडिंग कि आज का जो रीडिंग में देख रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट का, इज इट द हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो ऑफ लास्ट फ्यू डेज. तो हमने जनरली देखा कि काफी एक एक्सट्रीम लेवल पे जब ओपन इंटरेस्ट आ जाता है तो वहाँ का जो प्राइस होता है, उस जोन का जो प्राइस होता है, वहाँ पे उस स्टॉक के इंटरमीडिएट टॉप या बॉटम बनाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं.
So this is another very good use of open interest which we can take into our trading. Akash, you can take next example. Another सेम एग्जांपल भेल का भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं. L&T अगेन इज द सेम. JSW, यस, अभी हम जैसे रिसेंट फाइंडिंग्स की बात कर रहे थे, तो JSW के अंदर वी हैव सीन गुड एक्टिविटी. जो करंट राइज आया है, सो मेनी पीपल आस्क कि ये तो जो पास्ट में हिस्टोरिकली हो गया वो हो गया, व्हाट आर द रिसेंट एग्जांपल्स. So JSW is one such stock which is in our watch list. हम जो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए, फ्यू वीक्स के लिए इस स्टॉक को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज वी हैव सीन गुड राइज इन ओपन इंटरेस्ट विथ राइज इन प्राइस. ये काफी टाइम के बाद आप देखिए कि थॉरली जब से ये क्रैक डाउन हुआ 260 से, जो स्टॉक ने क्लोज टू 130 या कितने का 130 के आसपास का लो बनाया था, 140 के आसपास का. उसके बाद फर्स्ट टाइम अभी जो ये 164 170 से मूव स्टार्ट हुआ है, वहां पे हमने देखा कि फर्स्ट टाइम ओपन इंटरेस्ट ने न सिर्फ अपने एवरेज को क्रॉस करा, वी हैव सीन ओपन इंटरेस्ट राइजिंग ऑन एवरी राइज, ऑन एवरी प्राइस राइज. So that suggests कि lot of interest is there in this stock. So next, going forward for next 2 to 4 weeks, we will be closely watching this stock. Next example, Akash. So बैंक निफ्टी, जो F&O traders हैं, या हर किसी को most of the people were surprised and even we were surprised looking onto the move of बैंक निफ्टी. बट आप यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली स्टॉक. मैंने आपको निफ्टी का भी एग्जांपल दिखाया था. एंड रिसेंटली लेट्स सी द बिहेवियर ऑफ बैंक निफ्टी. आपने देखा होगा फॉर स्टार्टिंग निफ्टी ने पूरे एंटायर राइज जो था निफ्टी का 7500 से 9900, और उसके बाद भी जो राइज आया था, बैंक निफ्टी वाज द वन व्हिच वाज क्लियर अंडर परफॉर्मर, and rather it continue to make new low, or it was not able to see any buying momentum. हमने recent उसके अंदर देखा, recent जो लो बना था बैंक निफ्टी का below 18,000, वहां के आसपास आप देखिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना सस्टेंशियली राइज हुआ था. ये ऑलमोस्ट आई गेस 1 मंथ से ऊपर का जो ओपन इंटरेस्ट है उसने क्रॉस करा. न सिर्फ एवरेज को क्रॉस करा, बट यहाँ पे रिसेंट एट द रिसेंट बॉटम जो ओपन इंटरेस्ट था, दैट वाज हाईएस्ट ऑफ लास्ट 30 डेज और समथिंग. वहां से हमने देखा एंड राइज देखा ओपन इंटरेस्ट में, एंड विद दैट जैसे ही प्राइस राइज हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट वाज सपोर्टिव. सो दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन विच इज एक्टिव राइट नाउ. हमें ऐसा लगता है फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स बैंक निफ्टी वुड बी इन फोकस. तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट मार्केट व्यू की हम बात करें निफ्टी का, ऐसा लगता है कि द अपसाइड इज लिमिटेड इन द बैंड ऑफ 10,200 400 फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. Positionally, there are chances for further upside towards 10,600 and 400. But Bank Nifty is the one sector and index which we are watching closely. There are a lot of signals which are suggesting कि Bank Nifty में अच्छा movement आ सकता है next 4 to 6 weeks point of view से. So this is another live example which you can focus upon for coming few weeks. Akash, if we can go on to next quiz, and let's see if the viewers are able to recognize again. Next example जो quiz था. Yes. So ये देखिए आपकी another example is in front of you. यहाँ पे आप देखिए जो लास्ट का है, हमें राइट हैंड साइड पे जो लास्ट है, उस ओपन इंटरेस्ट के और प्राइस के बिहेवियर को देख के वी हैव टू फोरकास्ट आगे का हमें ट्रेंड क्या लगता है, या ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करके हमें क्या लगता है ओवरऑल बिहेवियर. सो जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Bearish fall up, gold stock coming down, price increasing, oil is high, price is high. Right. So Akash, you can show the
answer to this quiz. So this was Infosys in front of you. सी जो ये रिसेंट लो बना, आप देखिए कि उसके जस्ट पहले एक्टिविटी कैसा था. तो यहाँ पे there are 3-4 things to note. First of all, open interest has activity has increased substantially. देखिए आप न सिर्फ एवरेज को क्रॉस करा, लास्ट फ्यू वीक्स का, मंथ्स का, बल्कि उसने ओपन इंटरेस्ट क्रॉस कर दिया था. एंड दैट वाज इन केस ऑफ व्हेन द प्राइस वर मूविंग हायर. और देखिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर, फ्यू मंथ्स के अंदर स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया था. So there are 2-3 things. Again यहाँ पे देखिए कि एक तो मनी फ्लो इंक्रीज हो रहा है. So in such a frontline stock, if money flow is increasing, that is indicative of something happening in the stock. कि कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर हो रहा है. And if we want to correlate it with then price का behavior. और आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर देखे हैं. हम यहाँ पे हमने कोई भी टेक्निकल स्टडी नहीं लगाई है और दूसरा कोई भी फंडामेंटल हमने स्टडी यूज नहीं करी है. We are just looking onto the behavior of open interest and combining it with the movement of price. So see how beautifully this method can work. So yes, the stock is Infosys, and I guess you can come on to next slides, Akash. So I guess I have explained enough examples, and now we can open the floor for Q&A. These are the research products which we are offering, and talking about on the next slides, we have our performance of the intraday as well as the options calls which we are giving. And in the next webinar, we are going to discuss more about options. तो ये हमने आज जो डिस्कशन रखा पूरा वो फीचर्स को कॉन्सेंट्रेट करके रखा था, ओपन इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स. In next, lot of interesting things and observations are there related to options analysis with the help of options data. So primarily open interest को हम देखते हैं. Coupled with that, lot of other stuff is there. So in case you want to attend the future webinars, please get subscribe to our social media channel so that you can get updated, stay updated with the upcoming webinars which are lined up. So now we can open the floor for question and answers. Raj, there's one Mr. Anil Bhatija who's asking, sir, but how to know the levels to enter and exit? Right. So as I said, so इसमें कैसा है, whenever we are taking any trade, so there are a lot of things to take into consideration before entering a trade. यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही टूल को देखा. एक पर्टिकुलर टूल के यूजेज से हमें डायरेक्शन कैसे पता चलती है, कौन सी डायरेक्शन है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलते हैं. तो जैसे प्राइस पॉइंट्स भी मिलते हैं जिनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्ट कर सकते हैं. सो नाउ इफ यू आर ट्रेडिंग बाय योरसेल्फ, so and you are into this field, so definitely you must be using some of your own parameters. खुद के कुछ अपन tools यूज करते होंगे, as well as कैसे ट्रेड लेना या कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, that we are already discussing in other webinars. जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए टेक्निकल पे एक वेबिनार दिया था, which is must be there on our YouTube channel. ऑल्सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी हम कुछ वेबिनार्स डेडिकेटेड ले रहे हैं जहाँ पे हम पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं. So while you are taking a particular trade with open interest is a coincident indicator which supports your view. For trading you need support, resistance and good risk reward ratio. तो वो आप जो दूसरी मेथड यूज करते होंगे, with that you can take help of those. Also ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो ये हमने सिर्फ फ्यूचर का डेटा देखा है, जो स्पेशली लेस देन 2-3 डेज का ट्रेडिंग होता है, वहाँ पे ऑप्शन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपको एंट्री एग्जिट के लेवल्स बहुत क्लियरली दे देता है. तो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग वेबिनार. नेक्स्ट वेबिनार हम जो भी रखेंगे ऑप्शंस का, दैट इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट ओनली. Yes, so you can write your questions there. Raj, Munesh Goel had the first question. Yeah. Buy on Nifty, ABD sells one Nifty, means OI is 7.5 being market lot of Nifty. Can you just answer that question, please? Okay. The first one in the question and answer section. First one in the Q&A section. Okay. A buy one Nifty and sell one Nifty means OI 75 means the market lot of Nifty. It can see
सो यहाँ पे कैसा है सर कि जब भी एक न्यू एंट्रेंट एंटर होता है, एक नया बायर आया और एक नया सेलर आया, तो तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता है। और यही चीज होती है कि यदि एग्जिस्टिंग जिसने बाय कर रखा है पोजीशन वो सेल करता है किसी नए आदमी को, बट वहाँ पे यानी दोनों जने सामने सामने अपनी पोजीशन यदि क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट विल बी रिडक्शन। जबकि नए पोजीशन एंट्रेंट ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करने के लिए देयर मस्ट बी अ फ्रेश बाय एंड सेल ऑफ वन न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग सेलर से एग्जिस्टिंग जिनकी पोजीशन है उनसे लेकर के यदि वो पोजीशन ले रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द ओपन इंटरेस्ट फॉर दैट। One more person question from Balashni. Sir, can you explain Axis Bank, as you had Axis Bank on short covering on June 9, but the price had fallen before rising in the last 20 minutes. So where to enter the stock means at what level? यहाँ पे हमने जो मेजर स्टडी करा था दैट वाज दैट आज की आप प्राइस की बात करें, व्हाट इज द क्वेश्चन अगेन इफ यू कैन टेल? Sir, can you explain Axis Bank, as you had Axis Bank on short covering on June 9th? That's today. Right. That's yesterday, sorry. But the price had fallen before rising in the last 20 minutes. So where to enter the stock means at what level? Right. So sir, short covering का मतलब ये होता है, short covering like Akash has already mentioned, that is mildly bullish, कि वहाँ पे genuine buying हम show नहीं कर सकते, but existing players who were short are now in rush to cover their position. Short covering की जो definition है और जो work करता है. Now talking about coming on to the exact levels, जो हमने आपने देखा कि यदि 8 जून को निकाला है 9 जून के लिए, so levels is something which you can if you want to identify, you can look on to options data. वहाँ से आपको important support and resistance मिल जाता है, because unfortunately derivatives के अंदर हमें कोई भी ऐसा method नहीं which can predict the price either on the support side or resistance except the option data. वहाँ आपको एक काफी अच्छा क्लैरिटी मिल जाता है कि किस लेवल पे सपोर्ट है और किस लेवल पे रेजिस्टेंस है. So that is one method you can look on if you are using only open interest. Generally traders club technical with derivatives. तो यहाँ पे यदि मैं टेक्निकल की बात करता हूँ, तो whatever tools you are using, you can determine the support and resistance based on that. But in general जो ये आपको मॉर्निंग में डेटा मिलता है, it gives you an indication कि कौन से स्टॉक के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कैसी डेटा पोजिशनिंग है. So it helps you in that regard. Yes. So Q&A session. Call option is more than put option, so that we are going to cover in the next one. Sir, someone is asking for website कि कौन से वेबसाइट से डेटा मिलेगा. तो there are some paid software and there are some free software are also available. तो अगर आपको फ्री में डेटा चाहिए तो आप एनएससी की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा कि एनएससी इंडिया पे जाके प्रोडक्ट में जाके डेरिवेटिव्स में जाके आपको कोई भी स्टॉक का फ्यूचर्स का डेटा या ऑप्शंस का डेटा वहां पे आपको मिल जाएगा. How can I get the OI indicator? OI indicator, so जैसे we are using some already paid software, but I'm sure there are a lot of websites which can provide you with OI indicator. तो वो लोग individually किसी particular stock का कितना open interest है वो भी दिखाते हैं, साथ में they give you the cumulative figure also. So someone is asking, open interest is taken for just current month expiry or all series? So it's for all series. कि तीनों एक्सपायरी का हम लोग ने कंबाइन करके ओपन इंटरेस्ट लिया है यहाँ पे. Can you explain again the change in trend? So change in trend happens when the ongoing trend is not supported by open interest. So say मैंने एक price decline देखा which was not supported by volume. जैसे हमने काफी एग्जांपल जैसे एग्जांपल का देखिए कि लास्ट लेग ऑफ एग्जाम जो डिक्लाइन आया था that was not supported by rising open interest. So that means कि वो जो ongoing trend है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा. तो सबसे बड़ा बिलीफ ही यहीं पे हम जो ओपन इंटरेस्ट के साथ करते हैं कि द मूव ऑफ प्राइस शुड बी सपोर्टेड बाय ओपन इंटरेस्ट. तो हम उसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट देखते हैं. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट कैन बी अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल. तो वहाँ पे हम फिर वॉच कर सकते हैं कि यदि ये ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन के ऊपर नहीं बढ़ रहा है
तो यदि प्राइस राइज आता है वहां से कुछ भी उस पे यदि हम देखते हैं अल्टरनेटिव बढ़ रहा है, दैट इज सजेस्टिंग कि दिस कैन बी अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल. So that is how change in trend works. With stock price over to check CD और PCs stock can have many price over. So वो आप ऑप्शन डेटा की बात कर रहे हैं, तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा प्राइस ओवर टू चेक सी और पी, और ऑप्शन की बात कर रहे हैं. ऑप्शंस का मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन का एनालिसिस काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में तो सिर्फ हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है. ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसलिए हो जाता है कि बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होती हैं. मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूँ और कैसे उसके बेसिस पे मैं डेटा इंटरप्रेट करूँ, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग ओपन इंटरेस्ट होगा, अलग वॉल्यूम होगा, कॉल का अलग होगा, कुछ ऑप्शन का अलग होगा. तो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो इन आवर अपकमिंग वेबिनार. So time frame for what is the time frame of long and short build up? So sir हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डे के कंपेयर करते हैं, प्रीवियस डे से कि आज कितना ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. तो उसके बेसिस पर अगर आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो आप कल के दिन जो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप होगा वो हम कल के रिपोर्ट में डालेंगे, तो आप वहां से लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में हो रहा है. और इफ यू वांट टू ट्रेड पोजिशनल तो पोजिशनली आपको देखना पड़ेगा कि 3-4 दिन का ट्रेंड देखना पड़ेगा या 1 वीक का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि उसमें ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी कैसा हो रहा है. उसके बाद जाके आप ट्रेड लेने का डिसाइड कर सकते हो. Team Jeevan Chaudhary had a question, but sir, there is no clarity regarding the strike price when addition of OI. क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर मार्केट की बात कर रहे हैं. फ्यूचर मार्केट के अंदर वी डोंट हैव स्ट्राइक प्राइसेस, वो ऑप्शंस मार्केट में आता है. एंड एज आई एम अगेन रिपीटिंग की ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस का मार्केट है, ऑप्शंस के ऊपर हम अलग से एक प्रेजेंटेशन लेने वाले, वेबिनार लेने वाले हैं. इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस की कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना, कैसे ऑप्शन डेटा के बेसिस पे एनालाइज करने का. Can you also show the returns per month slide, please? हाँ, But sure. Shield Choksy was asking about it. Yeah, Akash, you can show that slide. Yes sir. Then what is the time frame of long and short build up? तो सर ये एक ही दिन के डेटा पे लेकर के जो रिपोर्ट बनता है. वी आर एनालाइजिंग टुडेज डेटा और उसी का डेटा आफ्टर मार्केट जो अभी आता है उससे हम एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, एंड देन वी पुट ऑन आवर रिपोर्ट्स. तो वहाँ से आप जैसे मैंने बोला कि वो जो डेटा है वो पर्टिकुलरली दैट इज मेनली रेलेवेंट फॉर इंट्राडे. And in intraday, the intraday time frame data is very dynamic. So और जो हमने बाकी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करे थे, those were more from positional point of view. तो मैंने आपको बोला 1 to 2 week relevance के point of view से हमने ज़्यादा डेटा डिस्कस करे हैं. So as I said कि more activity is observed in less than 1 week, less than 3 days time frame in case of future and options. तो वहाँ पे इंट्राडे का डेटा को भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिलता है, because that is more relevant for short term players, intraday players. Also, Munish Kul had a question. The returns are basis of one lot. Yes. Yes. Okay. Munish ji is our new client, I think. Okay. Yes. Anyone else has any other questions? Mr. Sheel again asked, one lot of Bank Nifty? No, this is for the various options. So mostly our focus is always on Nifty and Bank Nifty, but it may include stocks also. So this is the performance which is there in front of you is for options calls, whatever is generated for Nifty, Bank Nifty, and stocks. Okay. Someone asks a question. If you're updating the data in the morning, the data is valid for that day or for intraday? That day only, I mean. That day only, intraday only. Yeah, intraday only. फिर डेटा तो चेंज होता रहेगा, फिर कल कितना ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में पोजीशन बिल्डअप होता है वो फिर नेक्स्ट डे हमको पता चलता है. Okay. Yeah. Any other questions, Manoj?
Okay, anonymous got answered. Munish Ji has few questions regarding software. I think we shall connect with you offline, Mr. Munish, and we will surely guide you across the process. As for all the attendees, thank you everyone for sharing the valuable time with us. If anyone has more specific questions, you can kindly WhatsApp them to us on the following number that Akash, can you please share the WhatsApp screen, please? Yeah, so this is our BP Wealth number. We are on Telegram and on WhatsApp and also on social channels. Kindly drop us a message or a query on any of these platforms and be rest assured we will get back to you at the earliest. Also, Thank Hans, you. before we let everyone go, I'd like to say that please do interact with our social channels because that is the best way to get in touch with us. And we put a lot of effort into all of these webinars and all of these sessions that we put in. And your inputs and feedbacks are very, very valuable to us. So please do give us your feedbacks as well. Thank you. Thank you. Thank you very much for attending the webinar. Let Thank us you. know your feedback so that we can plan our upcoming webinars accordingly. We are deciding the webinars topics of the webinar based on the feedback which we are receiving. So let us know which topics you people are interested, and also the feedback on the whatever webinars we have done till date. So your feedback is most welcome.